So A1 type milk can cause type 1 diabetes, can Okay. cause autism. That every third, fourth child will be on some autistic spectrum. But India में भी अब वो बढ़ रहा है. At the age of 8, 9 girls are hitting puberty because of the milk that they're consuming, which is highly estrogenic. आज ब्राजील के नोटों पे, करेंसी कॉइन्स पे गिर छपी होती है. इंटरेस्टिंगली आपको हैरानी होगी जानकर उनके पास कोई काउज नहीं होती है. महाराष्ट्र में आज भी सबसे ज्यादा सुसाइड होता है फार्मर्स का. This oxytocin in man, which is banned in India, but still being used and widely available in spite of the ban. It's become a beverage now. It is no more milk. Hi, welcome to the podcast Women Wellness First. I'm very, very honored to have Mr. Aseem Rawat, who's an owner of an ethical dairy farm called Heta, which I have been personally using for now 10 years and love what they're doing. And so this was my endeavor to actually clear out lots of doubts that people have about dairy and milk. What is A1? What is A2? Should we consume milk at all or should we not? Should we stop? And so I think no better person can do this for us. He is so knowledgeable. He has spent 10 years of his life doing ethical dairy farming in the correct way. And so I'm very happy to have him on our podcast. Answer everything about anything to related with milk. We'll try to address this here so that we can raise the awareness about whether milk is good for us, not good for us, what should we do, what kind of milk we should consume. I think those are the questions we'll try to address on this. Welcome, Mr. Rawat. Thank you for honoring our podcast. Been using your Heta milk for 10 years now. तो मुझे लगा कि आपसे बेटर तो कोई होगा नहीं जो हमें थोड़ा सा एनलाइटन कर पाए मिल्क के बारे में, क्योंकि मैं विमेन वेल हेल्थ में की स्पेस में काम करती हूँ और हमारे जितने भी सुनने वाले हैं वो विमेन हेल्थ के आसपास जिनको PCOS है, थायराइड है, फर्टिलिटी इश्यूज हैं, तो दोज आर द काइंड ऑफ पीपल आई टॉक टू. तो उनके हमेशा एक सवाल, हमेशा ये हार्मोन से रिलेटेड बहुत बड़ा सवाल रहता है कि दूध से एस्ट्रोजन बढ़ता है तो उसकी वजह से प्यूबर्टी भी जल्दी होती है गर्ल्स में और बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर से उसका एसोसिएशन है, फर्टिलिटी इश्यूज हैं. तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि दूध पीना चाहिए कि नहीं, अवॉइड करना चाहिए, शुड वी मूव टू प्लांट बेस्ड डेयरी एंड थिंग्स लाइक दैट. सो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि A2 काउ मिल्क इज द बेस्ट मिल्क, बट इफ इट कम्स फ्रॉम एन एक्सपर्ट लाइक यू, आई थिंक people will get more enlightened about this subject. तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि how is Heta different from the other dairy farms that we see around? Yeah. So thank you for hosting us. Very thoughtful of you. And I was very glad to know. I wasn't aware कि you've been using Heta's milk for the last 10 years. It's almost the time when Heta started. Yes. Yeah. So very honored. Thank you. So Heta is a cruelty-free dairy, but it has much more to offer than just dairy because we work on the entire ecosystem of the cow. So from the time the cow is born at Heta, our mission is that she's going to be with us until she dies, and then we are going to be basically sending her, so that's just a statement, but a lot goes behind the scenes. How do we do that? जी. How do we take care of the cow when she is not milking? How do we give her good fodder when nobody cares for her? How do we care of the old cows and bulls who in their prime were of use to us, but now are not milking or not giving what they probably were earlier? So Heta was formed around this whole philosophy कि we will ensure that our cows stay with us from the birth till the very end, and we are going to be doing this ethically. So the word ethics has a few things tied to it. So एक तो उसकी गाय की अपनी उम्र हो गई, so the life cycle of the cow. Two is when the calf is born, is the calf being given equal share of milk? Now that's important because milk is costly, and a lot of dairies put the calves from day one on milk substitutes. So they get milk substitutes while the milk goes to the consumer. But it doesn't happen that way in Heta.
Wow. and this is premium A2 milk. So, and how do we do? What's the formula? So this is already inked in the Indian philosophy, the Vedic philosophy, where the word dohan is used. So when we go to milk a cow, we don't say कि हम दूध निकाल रहे हैं, we say हम दूध दोहने जा रहे हैं. बिल्कुल. तो उसका मतलब ये होता है कि द रिमाइंडिंग यू दैट जब आप मिल्क निकाल रहे हो तो 2 टीथ से लेना है, दोहन करना है, आपको 4 से नहीं लेना है. 2 आपके लिए हैं, 2 उसके बच्चे के लिए हैं, तो वो भी हेल्दी रहेगा, आपकी प्रोजेनी अच्छी होगी जो आगे होने वाली है, और आपको अपना शेयर मिल गया. वो शेयर इसलिए मिला क्योंकि आपने गाय का ध्यान रखा, आपने फीड एंड फॉडर दी, जी. उसको प्रोटेक्ट किया, उसको अच्छा एनवायरनमेंट दिया, एंड द काफ डजंट नीड दैट मच मिल्क. इस पे भी हम बात करेंगे आगे इन डिटेल्स Okay. कि व्हाट वुड हैपन इफ वी लीव ऑल द मिल्क फॉर द काफ, व्हिच सम पीपल स्पेशली द वीगन्स से, बिकॉज दे आर नॉट केप्ट काउज. सो देयर इज अ होल साइंस बिहाइंड इट. अच्छा. जी. तो दैट्स व्हाट हिता इज ऑल अबाउट. वो जो एथिक्स है उसके साथ गायों का पालन करना, देसी गौवंश का पालन करना जो खत्म होता जा रहा था और अभी भी बहुत मुश्किल में है, तो इसलिए हिता बनी थी. जी. अमेजिंग, अमेजिंग. दैट इज़ सो गुड टू नो. सो आई एम श्योर ये पॉडकास्ट में काफ़ी हमारे जो सुनने वाले हैं उनको काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसमें. तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि दूध ज़रूरी है कि नहीं, लाइक डू वी नीड मिल्क, और क्या हम अगर प्लांट बेस्ड मिल्क पे शिफ्ट हो जाएं तो क्या वो सही है? So it's a very good question, and this question makes a lot of sense specifically for Gen Z, क्योंकि बहुत लोगों ने उनको बताया नहीं कि दूध क्यों ज़रूरी है. जब आप बताएंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, तो आप उसकी अहमियत नहीं समझेंगे. तो मिल्क continues to remain as the cheapest source of protein. ठीक है. इससे सस्ता कोई भी प्रोटीन अवेलेबल नहीं है. बॉडी की नीड है हमारी कि हमें प्रोटीन चाहिए, और बहुत कम जगह से आपको अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है. वे प्रोटीन आज भी सबसे अच्छा होता है, और बहुत सारे जो हमारे जिम इंथुजियास्ट हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, फिटनेस ट्रेनर्स हैं, वो वे प्रोटीन के बारे में जानते हैं. वे प्रोटीन महंगा भी होता है, अगेन कम्स फ्रॉम द मिल्क. जी. तो मान लीजिए कि मैं राजस्थान और हरियाणा में रहता हूँ, और मैं वहाँ खेती करता हूँ, खेती करना चाहता हूँ टू ग्रो फूड जिसको मैं प्रोटीन के रूप में यूज़ करूँगा, एंड आई डोंट वांट टू यूज़ मिल्क, अज्यूमिंग आई बिलोंग टू दैट स्कूल ऑफ थॉट, और मैं गायों से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैंने उनको हटा दिया अपनी लाइफ से, अपनी सोसाइटी से, तो होगा क्या मेरे साथ? अब बहुत जगह इंडिया में ही और वर्ल्ड में भी आप इरिगेशन कैसे करते हैं, बारिश पे डिपेंडेंट होते हैं. अब बारिश जब होती है पानी इकट्ठा कर लेते हैं, और बारिश होती है तभी आपकी फसल हो पाती है. बहुत कम जगह आपको रिवर्स की ब्लेसिंग अवेलेबल है कि आप जब मनाएं आपने कर लिया. जी. ठीक है. तो अगर मेरे पास गाय नहीं होगी तो होगा क्या? जो मेरी भूमि है मैं उसको फर्टाइल कैसे रखूंगा? क्या मैं किचन वेस्ट यूज करूंगा? हम बात कर रहे हैं करोड़ों करोड़ों लोगों की. हम एक छोटी सी फैमिली, एक छोटी सी सोसाइटी बात नहीं कर रहे हैं कि आपने किचन वेस्ट यूज किया अपना और आपने वो बना लिया, या आपने लीव्स इकट्ठी कर ली उससे हो गया. यू नीड द काउ टू स्टार्ट विथ. उसका जो वेस्ट, जो मैन्योर होता है, काउडंग होता है, दैट गिव्स यू गुड क्वालिटी फर्टिलाइजर विच इज यूजफुल फॉर कीपिंग द सॉइल हेल्दी. आपकी सॉइल हेल्दी नहीं होगी. चलिए किसी तरीके से आपने कुछ करके आपने काउडंग यूज नहीं किया और आपने अपनी सॉइल को ठीक रखा, चलिए मान लेते हैं. अब बारिश एकदम से हो गई, एकदम से ओले पड़ गए, एकदम से वेदर चेंज हो गया. कल 40 डिग्री था यहाँ पर, वी आर इन अप्रैल. अभी एक हफ्ते पहले ठंड लग रही थी लोगों को. बिल्कुल. ठीक है. सडनली देयर इज सो मच ऑफ चेंज. क्रॉप्स कैसे सर्वाइव करेंगी? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द क्रॉप्स. ठीक है. वो बनी, फिर आप कितने ग्रीन हाउस बनाओगे? उसको भी चलने के लिए आपको एसी चाहिए, आप कार्बन फ्यूल्स यूज करते हैं उसके लिए भी. ठीक है. तो क्रॉप्स आपकी मर जाती हैं. महाराष्ट्र में आज भी सबसे ज़्यादा सुसाइड होता है फार्मर्स का. क्यों? आपने ज़मीन ली, आपने बीज लिया, आपने फर्टिलाइजर्स लिए, सब उधार पे लिए, आपने कुछ उगाया, वो ख़त्म हो गया. अब आपको एक एड गवर्नमेंट का ध्यान आता है कि भाई अगर कोई सुसाइड कर ले तो 5 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि वो आपके लिए सबसे ईजी वे आउट बेचारे को दिखता है, किसान को, कि मेरे पास कुछ नहीं है. एक रिपोर्ट ये बताती है जिनके पास गाय या गौवंश होता है वो सुसाइड नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास एक बैकअप होता है. ठीक है. वो
उस पर हम बात करेंगे कि इसी इसमें कि कैसे ये होता है। आप वापस राजस्थान और हरियाणा में आते हैं, मैंने उगाया था, मैंने मूंग लगाई या मैंने गेहूं लगाया, मेरा गेहूं और मूंग खराब हो गई, ठीक है, उतनी बारिश नहीं हुई, ज़्यादा बारिश हो गई, ओले पड़ गए। अब मेरे पास अगर गौवंश होता है, गाय होती हैं, सो जो वेस्ट हुआ वो फॉडर था मेरी गाय के लिए, रिच इन प्रोटीन, कार्ब्स, क्योंकि बीज तो छोटा सा लगता है। हाँ, अगर मेरी क्रॉप सही भी हो गई होती तो भी मूंग छोटी सी होती है, 95% ऑफ द प्लांट तो अभी भी मैंने यूज नहीं किया, करेक्ट। दैट इज फॉडर फॉर द काउ। तो वो इस तरह का जो लेफ्ट ओवर है हमारे एग्रीकल्चर से या जो खराब हो गया, वो उसके लिए फूड है जिसको हम और आप ह्यूमंस पचा नहीं सकते। करेक्ट। उस फॉडर को, हार्ड श्रब्स को, माउंटेन्स पे जो घास उगती है, जो वाइल्ड ग्रासेस उग रही हैं जिनको हम च्यू नहीं कर सकते, ग्रास के लिए वो फॉडर है और वो नेचुरली उग रही है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। करेक्ट। प्लांट की लीव्स हैं, हम और आप च्यू नहीं कर सकते, ठीक है। गाय के लिए सब कुछ फॉडर है। तो गाय ये खाती है, क्या कन्वर्ट करके देती है, ऑलमोस्ट परफेक्ट फूड जिसमें गुड अमाउंट ऑफ फैट है, कार्ब्स हैं, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये सब आपको वो देती है और बदले में आपसे बहुत कम ले रही है वो, ठीक है। तो काव को अगर आप इस इक्वेशन से हटाते हैं तो आप पूरी फूड चेन तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये फूड का पार्ट मैंने आपसे बोला कि आपका प्रोटीन का इंटेक खत्म हो गया। कुछ लोग आते हैं बोलते हैं कि हाउ अबाउट आलमंड मिल्क, सोया मिल्क, प्लांट बेस्ड मिल्क, जी। ठीक है, ओके। तो अगेन हाउ डू यू ग्रो देम? ओह हाँ, ये तो सोचा ही नहीं था। हाउ डू आई ग्रो दीज? ओके, लेट्स अज्यूम समवेयर आई इंपोर्ट देम, बिकॉज आलमंड जो खाते हैं उन्हें पता होगा कि कैलिफोर्निया, अमेरिका आलमंड भेज रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन क्या वो इतना है कि आप दूध बना बना के, प्रोटीन बना के बेचेंगे और उसमें भी ऑक्सिलेट्स होते हैं? हाँ। प्लांट बेस्ड जो मिल्क होता है, दैट इज नॉट परफेक्ट मिल्क, दैट इज जस्ट समथिंग टू ड्रिंक वंस इन अ व्हाइल। यस। एग्जैक्टली, दैट कैन नॉट एंड कैन नेवर रिप्लेस मिल्क यस। विच इज कमिंग फ्रॉम द काउ, ठीक है। तो ये भ्रांति से हटना चाहिए। और FSI इज ऑल्सो स्ट्रिप्ड इन इंडिया। दे सेड Okay. बॉस, यू कैन नॉट राइट दिस एज मिल्क, यू राइट दिस एज अ बेवरेज। यानी अच्छा। हाँ, जो भी प्लांट बेस्ड सोया मिल्क लिख रहे थे, अब वो सोया बेवरेज लिखते हैं। अच्छा। हाँ, अब आप नहीं लिख सकते और वो बिल्कुल सही है, बिकॉज दिस इज नो वे क्लोज टू मिल्क, ठीक है। तो काउ कैन नेवर बी रिमूव्ड। इफ यू रिमूव द काउ, आप पूरी एग्रीकल्चर साइकिल खराब कर रहे हैं, आप अपनी फूड सिक्योरिटी खराब कर रहे हैं। क्योंकि सब लोग पंजाब में या गंगा के पास नहीं रहते भाई, ऐसे भी एरियाज हैं डाउन साउथ इंडिया के सेंटर में, हिल्स पे, डेजर्ट्स में, वो लोग कैसे रहेंगे? दे आर फुली डिपेंडेंट ऑन द काउ। Okay. गाय का घी उन्हें नरिश करता है, गाय का बटर मिल्क से वो अपना पूरा दिन निकालते हैं, ठीक है। देर आर टाइम्स व्हेन दे हैव नथिंग टू इट एक्सेप्ट द मिल्क दैट देयर फ्रॉम द काउ एंड दे आर वेरी हेल्दी, ठीक है। There's so many societies which are agrarian, which are pastoral, which are dependent on these cows. They just move along with their cows. The cow dung से अपना ईंधन बना लेते हैं। बिल्कुल। तो आप प्लांट कटिंग भी रोकते हैं, आप ट्रीज को भी कटने से बचाते हैं, बिकॉज द काउ इज गिविंग यू एवरीथिंग। Yeah. आपके पास फायर के लिए आपके पास वुड की जरूरत नहीं है, आपने काउ डंग यूज किया, खाने के लिए उसने आपको शाम को सुबह मिल्क दिया, इतना अच्छा। आपको क्या करना था? आपको सिर्फ चराना था जंगल में, ठीक है। वो भी रीजनरेटिव है अपने आप में, बिल्कुल। उतना लेगी जितना उसको ज़रूरी है, एक्स्ट्रा एक्सेस कभी नहीं खाएगी ह्यूमंस की तरह, जैसे हम लोग होर्ड करते हैं, वो नहीं है उसके साथ। तो जब से गाय हटी है, इट इज़ बीन पुश्ड आउट of maybe ignorance or through a planned agenda. Our farmers have become poorer. They've had no security. You know, if my crop fails, then what? I have nothing. तो जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए काउ इज अ बून, ठीक है। सो वी शुड पुट अ फुल स्टॉप टू दिस whole school of thought that you don't need cow's milk, Cow's milk. you don't need the cow, you're good without it. No, we are not, for the reasons that I just stated. अभी जो ये जो अभी वॉर चल रहा था और उसमें फ्यूल की प्रॉब्लम हो रही थी, तो कई गांव में तो बायोगैस वाज द सोर्स फॉर कुकिंग एंड एवरीथिंग, सो दैट कम्स ऑल फ्रॉम Absolutely. काउ डंग ना। At Heta, we are doing the same. We're using cow dung to fuel our, fire needs. हाँ। So, and it's helping us. ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे विलेजर्स हैं जो आप LPG CNG नहीं बाय कर रहे हैं, बिकॉज वो एक तो अवेलेबल नहीं है हाँ। उस तरीके से। एंड वाई टू यूज इट व्हेन यू हैव द काउ डंग? या बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो है कि दूध पीना चाहिए, ये आपने बता दिया हमें। लेकिन अब इसमें एक जो बहुत कंफ्यूजन है वो है A1 और A2 को लेकर, कि A1 काउ
ओके, पीना चाहिए या A2। तो अब सभी लोगों को पता है कि A2 अच्छा होता है, लेकिन उसके वो A2 क्या है, जी कहाँ से आता है, इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल तो अगेन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन because there's a lot of confusion around the question and for various reasons there's misinformation you know because there's so much of information and sometimes it people gain by this misinformation मेरे पास अगर वो चीज़ नहीं है तो it helps if I spread misinformation बिल्कुल। so there is this book by Dr. Keith Woodford ओके। Devil in the Milk and the Politics of A1A2 Milk मैं रिकमेंड करूंगा हर व्यक्ति से जो मिल्क के बारे में जानना चाहता है A1A2 मिल्क के बारे में जानना चाहता है ऑटिज्म के बारे में जानना चाहता है स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जानना चाहता है हार्मोनल इश्यूज के बारे में जानना चाहता है तो उस बुक को ज़रूर पढ़े अमेजोन पे मिलेगी थोड़ी सी कॉस्टली है बट वर्थ द टाइम एंड मनी ओके। तो डॉक्टर कीथ वुडफुड ने रिसर्च की इस पे इस कॉन्सेप्ट पे कि A1A2 प्रोटीन होता क्या है इस रिसर्च के दौरान उन्होंने पाया कि जो बच्चे A2 टाइप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे थे मिल्क से वो जो ऑटिज्म की कंडीशन थी उससे जल्दी निकल पा रहे थे बेहतर स्थिति हो रही थी which is a big thing because any parent having an autistic child is a nightmare and specifically in these times when you are not having that support structure that you used to have earlier how do you take care of that such a child so it's best to get out of that situation and A2 milk plays a part in it वाओ। so A1 type milk can cause type 1 diabetes can Okay. cause autism ओके। or and similar disease like the schizophrenia, bloating, sudden death syndrome is also attributed to A1 type milk protein. ओके। So it is now widely considered, and for the right reasons, through research, that it's always better if you have A2 type milk. So A2 type milk humans का होता है, इंडिजिनस काउस का होता है, Okay. अफ्रीकन काउस का होता है, गोट का होता है, शीप का होता है, हॉर्स का होता है, कैमल का होता है एंड सम यूरोपियन काउस ऑल्सो लाइक द रूशने ऑल्सो गिव A2 टाइप मिल्क ओके। अब जो A1 टाइप प्रोटीन है ये आया कैसे सो यूरोप में दे हैव मेनी टाइप्स ऑफ काउस विच गिव बोथ A1 एंड A2 टाइप मिल्क तो कोई भी काउ अगर आप लाते हैं जैसे आप जर्सी काउ लाते हैं जिसमें काफी मात्रा में A1 टाइप पाया जाता है प्रोटीन बट इट ऑल्सो हैज A2 टाइप प्रोटीन so it'll have both the protein अच्छा। but a little bit of A1 is also not good for your health Right. it's best avoided ओके। तो जब जर्सी काउस हॉल्स्टीन फ्रीजियन काउस यहाँ इंडिया में आई बिकॉज फॉर सम रीजन the ministry that was there the ministers that were there at that time when operation flood started कि मिल्क की हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है बढ़ानी। तो वो काउस को गलत तरीके से इंपोर्ट किया गया ये सोचकर कि इंडिजिनस काउस उतना मिल्क नहीं दे सकती जबकि ये ट्रू नहीं था वी स्टिल हैव ब्रीड्स लाइक द साहिवाल द गीर यू नो who milk if not better but not less if we just talk about the quantity of milk quality wise तो वो ऑलरेडी बहुत आगे हैं बिकॉज दे आर प्योर A2 प्योर A2। जी तो इन काउस को गवर्नमेंट ने खुद प्रमोट किया हु बेनिफिटेड मे बी द मिडिलमैन फार्मर्स ऑफ यूरोप बट इंडियन फार्मर्स जो इंडिजिनस ब्रीड्स रखते थे उनके लिए डिलेमा हुआ कि मिनिस्टर्स तो कुछ मतलब जो मिनिस्ट्री है वो कुछ और कह रही है हाँ। हमारे सीवीओ कुछ और कह रहे हैं जो है हमें न्यूज़ ये मिलती है कि ये काऊ पालो ज़्यादा दूध आएगा दूध हाँ। फैट और प्रोटीन एसएनएफ किस चीज़ से वो खरीद रहे हैं वो खरीदते हैं कितना फैट आपके दूध में है कितना एसएनएफ आपके दूध में है वो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन पे नहीं खरीदते दुर्भाग्यवश तो वो कह रहा है कि मैं क्यों देसी गाय पालूं जबकि मुझे खुद पता है कि देसी गाय का दूध पी के आई विल नॉट हैव एसिडिटी देयर आर लॉट ऑफ पीपल who can differentiate just by drinking if it's A1 A2 Yeah. because if you drink A1 type milk you will have burps you'll have indigestion issue immediately and in the villages even the place from where I come I know people who say कि जिस दिन मैं जर्सी का दूध पीता हूँ ना I have this issue of bloating I have these burps so I've switched to a देसी cow तो वो बहुत क्लियरली बताते हैं कि मैं क्यों देसी गाय का दूध पी रहा हूँ एंड लाइक इसको कुछ पता नहीं है A1 A2 के बारे में बट ही नोज द डिफरेंस Yes. जस्ट बाय कंज्यूमिंग द मिल्क सो A2 milk is the need of the hour keeping in mind the different issues that humanity is facing and
I think through your podcast, this should get addressed. या Yeah. सो A2 काउ जो है A2 जो मिल्क है वो हमारी देसी काउ से मिल रहा है हमें, और ये इससे तो पूरा ब्राज़ील में एक रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ है। तो आप ज़रा उसके बारे में बताइए, ताकि जो यहाँ डेयरी फार्मर्स हैं दे कैन टेक सम इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, कि जब ब्राज़ील इसको कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अपनी ही काउ जो हमने हमारी हैं उसको एथिकली हम पालें, उसका उसका पूरा देखभाल करें। ऐसा नहीं हो कि एक मीट इंडस्ट्री पैरेलली खड़ी हो जाए जी। उसके। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ऑटिज्म की आप कह रहे हैं बात, तो यूएस वगैरह में तो ये बहुत ही कॉमन है। मतलब एवरी थर्ड फोर्थ चाइल्ड विल बी ऑन सम ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम, जी। बट इंडिया में भी अब वो बढ़ रहा है। जी। सो आई थिंक टू probably put a stop to that, it's important that we know that हमारा जो ओरिजिनल काउ सिस्टम था या जिस तरीके से हम दूध निकालते थे वो काफ़ी अच्छा है हमारे लिए, वी कैन कंटिन्यू ऑन दैट। तो ब्राज़ील के एग्जाम्पल से आप हमें समझाइए कि ये कैसे हो सकता है। जी, सो देखिए, इसको मैं टाइप करता हूँ, हाउ डज अ फार्मर बिकम रिच। मैं क्रॉप्स उगाता हूँ, साल में 2 क्रॉप मैं ले रहा हूँ। अ, अब मैं सोना तो नहीं उगा सकता, वही क्रॉप है, उसकी एक पर्टिकुलर रेट है। आप ऑर्गेनिक उगाते हैं, थोड़ा-सा आपको ज़्यादा प्राइस मिल जाता है, स्टोरेज एक इश्यू है, ट्रांसपोर्ट एक इश्यू है, बी2सी आप बेचते हैं तो बहुत डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है, पैकेजिंग है, लेबलिंग है, एफएसएसआई है, सब कुछ आता है। और आप बी2बी करते हैं तो वो कहता है मैं क्यों केयर करूँ? बिकॉज़ आई कैन पुट केमिकल्स एंड आई कैन स्टार्ट सेलिंग। तो एक फार्मर, if we have to double his income, which the government is also kind of looking at, and for the right reasons, he needs to have cows, and that is what Brazil did. Okay. 1800s के आसपास ही, so थोड़ा सा पहले ही, there were some rich people who owned land in Brazil, Okay. जो colonizers थे। उन्होंने देखा कि हम अपनी कंट्री को गरीबी से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे हमारे फार्मर्स, लोकल फार्मर्स रिच हो सकते हैं। तो दे फिगर्ड आउट एट दैट टाइम कि काउ इज द की। सो दे गॉट सम काउज फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि साउथ अमेरिका में वो हैं ऊपर थोड़े से काउज, हाँ। हॉल्स्टीन फ्रीजन आ चुकी थी, जर्सी आ चुकी थी, इंग्लैंड से, यूरोप से वहाँ पे। तो उन्होंने ब्राज़ील में ट्राई करी, वो सफल नहीं हुई। इट हैड लॉट ऑफ डिजीजेस, वो कोल्ड क्लाइमेट्स के लिए बनी हुई हैं, एंड ट्रॉपिक्स में वो दे हैड अ वेरी हार्ड टाइम। सो समबडी टोल्ड देम इंडिया जाओ, दे हैव दिस काउ कल्चर। ओके। सो एक लकड़ी के जहाज में अब आप सोचिए, ब्राज़ील से उस समय जब बहुत अच्छा नेविगेशन नहीं होता था सिस्टम्स, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फूड, फॉडर, फ्रेश वाटर, ठीक है, आप नमक का पानी नहीं पी सकते। सो दे ट्रेवल्ड ऑल द वे, दे डॉक्ड इन गुजरात। अच्छा। नाउ द किंग इज गुजराती, दिस इज भावनगर्स किंग। सो somehow they communicated, और आपने फिर इंडियन काउज ली वहां से, गिर, अच्छा। उनके अच्छे बुल्स लिए, उसका अच्छा पैसा दिया। अच्छा। जो राजा थे, kudos to kings in Gujarat and a few in Rajasthan who understood the importance of cows. And they, when this milk revolution was happening, much later, 90s में, तो उन्होंने उसको अपनी काउस को मिक्स नहीं किया। उन्होंने कहा वी नो इट वेल, हमारी गाय लाखों सालों से है, meant for this area, we will keep them, we will never use HF and Jersey. So coming back, तो जब वो आए जहाज में वापस, उन्होंने लोड किया उन हाँ। गाय को, फिर वो वापस ब्राज़ील ले गए। ओके। कुछ गायों की जो है रास्ते में उनको डेथ भी हुई, लेकिन फॉडर, फ्रेश फॉडर को अरेंज करते हुए, जो है उनका फ्रेश पानी अरेंज करते हुए वो उनको वापस ले गए। दैट चेंज्ड द होल इकोनॉमी ऑफ ब्राज़ील। आज ब्राज़ील के नोटों पे, करेंसी कॉइन्स पे गिर छपी होती है। वाओ। और एवरी ईयर ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो बहुत प्राउडली बोलते हैं, वी आर व्हाट वी आर बिकॉज ऑफ द इंडियन गिर, द वाओ। इंडियन ओंगोल। ओंगोल दे टुक फ्रॉम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अच्छा। वहाँ पे ओंगोल नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है, दे हैव वेरी ब्यूटीफुल वाइट काउस। वाओ। तो ओंगोल एंड गिर became the backbone of Brazil's thriving dairy industry, जो आज हम बहुत IVF करते रहते हैं। हाँ। ये 50 साल से पहले से इस पे काम चल रहा है ब्राज़ील में। अच्छा। बहुत पहले इन्होंने वो सॉल्यूशंस निकाले जो ह्यूमंस के अलावा उन्होंने गाय के अच्छे जीन्स को, फॉर एग्जांपल, you have a very good cow in your house which is milking well, so she has good genes, eating the same fodder but milking better. So how do you spread that good gene everywhere? In the normal cycle, you would have the cow
basically calving 6 times, 7 times, बहुत ज़्यादा हुआ तो 8 times, और बस वो भी if all the calves survive. Yeah. But how do you take this to 200 farmers? How do you take this good gene to even further? So उन्होंने उस cow को लिया. The government took ownership of such cows, their farms. They took out the ovulates. Again, the whole IVF process was followed, and those were put, the embryos were put into any other cow, and you got a pure Indian origin gear Correct. with the good genes, Yes. with a high milking yield. तो बहुत अच्छे से ब्राज़ील ने अपनी जो काओ की इंडस्ट्री है वो एफर्ट से, टेक्नोलॉजी से और मन से उसको वहाँ पे वो ले गए हैं, जहाँ आज जो बुल हम से वो ले गए थे, you would be very surprised that dairy farmers in India look up to Brazil to get the semen of those good cows, ancient cows and bulls from Brazil at a very premium rate. एक अच्छा. semen stick आज 5,000 rupees, 10,000 rupees की बिक रही है. Wow. And who's benefiting? Brazilian farmers. ठीक है. So उनका आप टीवी भी देखेंगे अगर, तो उसमें नीचे एक ऐड चलता रहता है, जैसे हमारे यहाँ पान मसाला, पान बाहर का ऐड चलता है, तो ब्राज़ील में ऐड चलता है कि आप एक फार्मर हैं, आपने अपनी काऊ की कीमत लगाई से 10 लाख, हाँ. ठीक है, और बिकती हैं इस रेट पर, अच्छा. करोड़ों तक जाती हैं. Wow. हाँ, दे वैल्यू दैट. और कोई भी व्यक्ति बैठा देख सकता है, अरे 10 लाख तो ठीक है, 11, समझ से 50 bidding करते हैं. बिडिंग करते हैं. Okay. So the farmer gets good money for the cow he's Yes. bred, the calves that he's bred. Everybody, the whole system basically benefits. ठीक है. And that's what we also need to replicate in India. हमारे पास gaps हैं. हाँ. ठीक है. तो this is what Brazil did. This is where they started to thrive and they started to give back. In fact, they're one of the biggest exporters of ghee and indigenous cows across the globe. Wow. इंडिया से इतना नहीं आता. इंडिया में तो बैंड है, हम नहीं भेज सकते क्योंकि यही कमी है. Okay. Okay. That- yeah. Okay. So that obviously tells us कि ये तो एक profitable सिस्टम हो सकता है जिसमें कि इकोसिस्टम भी आपका फ्लरिश करेगा और बेटर क्वालिटी ऑफ मिल्क भी मिलेगा आपके बच्चों को, जिनके लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है व्हेन दे आर ग्रोइंग, प्रिवेंट्स लॉट्स ऑफ डिजीजेस एज वेल. तो आपने अभी शुरू में हमें बताया था कि जो कि वीगन लोगों को जिस चीज़ से एतराज़ हो सकता है या जो एथिकली इस सब चीज़ों को देखते हैं, who have gone completely plant based, कि आप सारा का सारा दूध काफ से ले रहे हो आप. जी. और तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि अगर चारों थन से अगर काफ कंज्यूम करती है मिल्क, तो उसके क्या मतलब, क्या उसके कोई डिसएडवांटेजेस हैं या उतना उसको मिल्क चाहिए कि नहीं चाहिए? So I think not many vegans will be happy to hear this. My due apologies. I do appreciate some part of what they say. Yeah. That there should not be any animal cruelty. But we're talking of two different things. We're talking of ethical milking here. So as I said, thousands and thousands and thousands of years, humans with the cows have learned what it takes to keep a cow healthy, what we should take and what we should not take from the cow, so that there is a balance. अब जब हम ethical milking की बात करते हैं, तो the cow should live from its birth to its natural death. There should be no hormones. और जो calf होता है उसका, वो अगर ज़्यादा दूध पी जाता है, मान लो हम calf को छोड़ देते हैं cow के साथ, ठीक है. ठीक है, तो एक तो बहुत सारे calf जब पैदा होते हैं, अब ये बहुत से जो जिसे हम आर्म चेयर फिलोसफर्स कहते हैं, ड्यू रिस्पेक्ट, वो नहीं इसी को समझ पाते. उन्होंने नहीं किया है, उसको देखा नहीं है, उस साइकिल को ही नहीं देखा उन्होंने. एक गाय का बच्चा बहुत बार खड़े होने के लिए उसको 2 दिन लग जाते हैं, वो वीक होता है. सब बच्चे नहीं एकदम खड़े हो पाते हैं. तो इट कैन बी अटैक्ड बाय वुल्व्स, बाय एनी कार्निवोरस एनिमल्स. सो यू हैव टू टेक केयर of the calf till the time it becomes, it's not like a deer child who knows to hide in the grass so that the cheetah doesn't catch it. It will automatically start running as soon as it is born. Doesn't happen with the cow's calf. Yes. Yeah. ठीक है, it needs care. Yeah. तो आपको उसको खड़ा करना पड़ता है. Sometimes it's not able to suckle from the teats, so you have to basically bring the mouth closer to the teeth. You have to milk the teeth so that the milk falls and he starts to regain the consciousness. Okay. This is milk and this is supposed to be taken by me and consumed by me. Basically the colostrum, the first milk that Yeah. comes out. तो वो काफ है, उसको बहुत हेल्प चाहिए.
अब काऊ के 4 टीथ्स होते हैं, सब में मिल्क है। हम्म। अगर कोई मैमल के टीथ्स में मिल्क रह जाता है क्योंकि काफ थोड़ा सा पी पाया, वो हाँ, कमजोर है, अब आपका हाँ। टीथ 3 टीथ से भरा हुआ है, करेक्ट। तो आपको मेस्टाइटिस सेट हो जाएगी। अरे बहुत ज्यादा, हाँ, वो वो तो एक पेनफुल major- कंडीशन ह्यूमंस में भी होती है, हाँ, एनिमल्स में भी होती है। बिल्कुल। लेकिन जिसने उसको देखा नहीं साइकिल को, उसके लगा अरे क्या होते करते हो आप, ऐसे कैसे होता है, वो तो उसी के लिए था, मिल्क नहीं है, क्योंकि उसने एक से भी मुश्किल से पिया। अब उस वो शायद 1 हफ्ते बाद 2 से पीना शुरू करेगा, करेक्ट। तब तक वो 3 टीथ्स खराब हो चुके होंगे, उनमें जो है मेस्टाइटिस सेट होकर ब्लीडिंग पस सब हो जाएगा। बिल्कुल। सो अ काउ नीड्स द हेल्प from humans. Humans. It needs the human hand, ठीक है, and in return it gives us this protein rich diet. Now again as I said, 2 practice करिए, half आपके लिए है, half उस काफ के लिए है, and 1 month के अंदर वो काफ खुद बिना आपके कहे ग्रास खाने लगता है, उसका गट बनने लगता है और वो खुद फॉडर खाना चाहता है। बिल्कुल। ठीक है, तो while we are taking something from the cow, we're also giving something to the cow. It's a very delicate but needed balance. Our earth needs cow dung from the cow. The earth needs gaumutra, cow urine from the Yes. from the cow, because it has urea, it has things which nourishes the soil. Yeah. ठीक है, so the whole idea that काफ के लिए था छोड़ दिया था, ये हिरन नहीं है, इसके 4 टीथ्स हैं और ये ह्यूमंस के लिए बने हैं। फ्रॉम द वैदिक एजेस, from all the Vedas, they have sung praises for the cow. There are Vedic mantras saying the cow should be welcome to our houses. It doesn't say the cat should be welcome, that the dog should be, while it's an equal partner, but there is a reason that our ancestors thought about the cow, and they understood कि if humans have to survive like a civilized society where they have to farm, if they have to have agriculture without burning forests, then you need to have the cow in your house. Yeah. You'll stay physically healthy, you'll stay mentally healthy. आप सुबह उठेंगे 5 बजे 4 बजे, आपको उसका ध्यान रखना है, सफाई करनी है, यू हैव अ साइकिल, यू नो देयर इज समथिंग टू डू. नाउ इफ यू डोंट हैव द काउ, यू माइट बिकम अ लेजी person just waiting for Blinkit to deliver Yeah. the milk, so I mean you're destroying a lot of ecosystem by taking the cow out of it. या सो एक चीज़ जो मैंने आपका जब से हम येता कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमने एक चीज़ देखी है जो कि आपकी मिल्क क्वालिटी चेंज होती है, विच इज़ द राइट वे टू असेस कि क्वालिटी ऑफ मिल्क अच्छा है कि नहीं। तो गर्मियों में काफ़ी थोड़ा पतला होता है, मलाई कम जमती है, ठंड में मलाई अच्छी जमती है, कभी कभी दूध फट जाता है, विच इज़ हाउ इट शुड वर्क। और कभी कभी इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि हो सकता है जस्ट न्यूली मदर जो है उसका जो दूध का क्वालिटी है वो डिफरेंट है। तो उससे ही उसके टेस्ट से मुझे समझ में आ जाता था कि ये एक अच्छी डेयरी का मिल्क है। लेकिन जो पैकेट्स में जो दूध आ रहा है आजकल, या ब्लू कार्टन्स में जो दूध आ रहा है, वो तो बिल्कुल एक जैसा है, थ्रू आउट द ईयर इट्स द सेम। और ब्लू कार्टन में तो मैंने ये देखा है कि वो तो खराब ही नहीं होता, 15-20 दिन तक अगर आपका डब्बा खुला है तो दूध खराब नहीं होता। तो इस दूध में जो कि आपकी डेयरी से आ रहे हैं, या जो जहाँ पे प्रॉपर मिल्किंग हो रही है, वर्सेस जो मिल्क हमें कमर्शियली मिल रहा है, इसमें क्या फ़र्क है? इसके प्रोसेस में कितना अंतर है? क्या करते हैं वो लोग इस मिल्क को कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और इसकी ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है? अच्छा कि आपने पूछा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ा मिल्क डेयरी हूँ, मान लीजिए ऐसा है, और जो मिल्क डेयरीज हैं, इंटरेस्टिंगली आपको हैरानी होगी जानकर, उनके पास कोई काउज नहीं होती है। अच्छा। चाहे आप 3000 करोड़ की डेयरी हो, चाहे आप 100 करोड़ की डेयरी हो, चाहे आप 50 करोड़ की डेयरी हो, उनके पास अपनी काउज नहीं होती। दे आर कलेक्टर्स ऑफ मिल्क। ओके। सो दे कलेक्ट मिल्क फ्रॉम डिफरेंट फार्मर्स अक्रॉस इंडिया, जहां भी उनको लगता है कि यहाँ सस्ता दूध मिलेगा। अच्छा। ठीक है, वो अपनी क्वालिटी चेक वहाँ करते हैं। उसके बाद जब आप इतनी जगह से दूध इकट्ठा करते हो तो ट्रांसपोर्ट होता है, एकदम से दूध एक जगह नहीं आ सकता, तो कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? सो दे हैव टू पैस्चराइज एंड होमोजेनाइज द मिल्क। तो एट द सोर्स इटसेल्फ जहाँ से वो कर रहे हैं, उनके पास 5 पैस्चराइजेशन की वो मशीन्स होती हैं। वो क्या करते हैं, दूध को जब वो पैस्चराइजेशन मशीन में डालते हैं, एकदम से वो गर्म होता है। ओके। कई बार हाई टेम्परेचर पैस्चराइजेशन की जाती है, कई बार थोड़े से कम पे की जाती है, पर की जाती है ऐसी कंपनीज के द्वारा, और उस दूध को एकदम से गर्म करके एकदम से ठंडा कर देते हैं।
ठीक है। तो वो जो शॉक ट्रीटमेंट होता है उससे बहुत सारे बैक्टीरिया बोथ गुड एंड बैड मर जाते हैं। एडवांटेज ये मिलता है कि उस दूध को आप वो गुजरात से गुवाहाटी भी भेज सकते हैं, कश्मीर से तमिलनाडु भी भेज सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। लेकिन जब आप ऐसा करते हो तो आप एक प्राइस पे करते हो। जब आप कलेक्ट करते हो मिल्क, अब आपको ये पता नहीं कि क्या गाय का था, क्या भैंस का था, क्या मिक्स काऊ का था, कौन सा एचएफ था, सब मिक्स हो जर्सी था, जाता है। सब मिक्स है वो। और आपने काऊ भी अगर आप बोलते हो तो बहुत जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा काउज मिल्क, तो कौन सी काऊ? हॉल्स्टन, फ्रीजन, जर्सी, यूरोपियन एक्सोटिक काउस या इंडिजिनस काउस? इतनी इंडिजिनस काउस है ही नहीं, और वो जहाँ जहाँ हैं वो बहुत दूर दूर जगह है, वहाँ से आना संभव नहीं है। तो ये जो मिल्क आपके पास अब आ गया, ये प्राइमरीली A2 होगा, ये ये A1 मिक्स होगा, A1 और A2 दोनों होगा, दोनों का मिक्स होगा। इसमें दोनों होगा। ठीक है। ठीक है, अब ये जो काओ मिल्क या जैसे कई और लोग बेचते हैं कि गाढ़ा मिल्क, ठीक है, तो अब आपने दूध को पैस्चराइज होमोनाइज करके एक सेंट्रल जगह भेजा। आते ही दूध को क्या करते हैं, सबसे पहले वो एक क्रीमर होता है उनके पास, जिससे वो सारी क्रीम फैट निकाल लेते हैं। तो अब अच्छा। आपके पास रहा क्रीम और आपके पास रहा टोन्ड मिल्क। ठीक है। डबल टोन, सिंगल टोन भी होता है, तो उससे और ज़्यादा सब कुछ निकाल लेते हैं, तो वो डबल टोन हो जाता है, बिल्कुल पानी हो गया वो अब। तो इस क्रीम को वो पिघलाकर घी बना लेते हैं, जो आपको 500, 600, 700 रुपए में जो घी बाजार में मिलता है वो ये होता है। ठीक है। ठीक है, आयुर्वेद इसको घी नहीं मानता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अब ये जो दूध होता है, कोई और डेयरी इनके पास आती है, वो कहती है कि आप इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, मुझे अपने क्लाइंटल्स के लिए चाहिए थोड़ा गाढ़ा दूध जिसमें 6% मिनिमम फैट हो। ओके। तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कोई भी फैट ले सकते हैं, एनिमल ओरिजिन से, प्लांट ओरिजिन से, उस फैट को वो उसमें डाल देते हैं। अब वो मिक्स नहीं होता है, तो उसको होमोजेनाइज किया जाता है ओके। अच्छी डेयरीज के द्वारा। होमोजेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत हाई प्रेशर पे उस दूध को और वो जो क्रीम है पास किया जाता है बहुत पतली पतली नालियों से, जिससे वो आपस में इंटरट्वाइन होकर, इंटरमिंगल होकर मिक्स हो जाते हैं, ताकि आपको स्मूथ फीलिंग मिले। तो इसमें रिफाइंड ऑयल हो, प्लांट बेस्ड ऑयल, वो सब भी हो सकता है, कोई मतलब कोई कुछ भी गंदी फैट क्वालिटी फैट का है, कुछ भी रिफाइंड ऑयल भी हो फैट, कुछ भी सकता है। फैट हो सकता है। ठीक Gosh, है, जो okay. जो परमिसेबल है उनके अपने नॉर्म्स के हिसाब से। ठीक है, और जनरली ये पाउडर फॉर्म में भी आता है। बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज, डेनमार्क, यूरोप, इसको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती हैं। ठीक है, ये सब होता है। अच्छा, अब जब आपके पास ये 6% का गाढ़ा दूध आ गया और आपने एक ऐप से ऑर्डर किया, आपको जनवरी में वही मिलेगा, अप्रैल में भी वही मिलेगा, जुलाई में भी वही मिलेगा, दिसंबर में भी वही मिलेगा, क्योंकि सेम चीज़ हो रही है। सब दूध इकट्ठा किया गया और उसका फैट निकाला गया, फिर वो जो है उसमें दोबारा डाला गया बेस्ड ऑन की वो जो कंपनी से आप ले रहे हैं उसकी क्या डिमांड थी, इसलिए वो लिख पाते हैं। पैकेट मिल्क जो हमें मिला, अब उसमें हमने स्पेसिफिक फैट, SNF जो है लिख दिया। पर ये अब बहुत दूर हो गया रियल मिल्क से। हमने इसको पैस्चराइज किया, उस कंपनी ने होमोजेनाइज कर लिया। आपने पहले क्रीम निकाली, फिर बेस्ड ऑन द नीड आपने उस पर क्रीम डाली, फिर आपने पैक करके उसको भेज दिया। ठीक है, तो इट्स बिकम अ बेवरेज नाउ, इट इज नो मोर मिल्क। हाँ, मिल्क तो रहा ही नहीं है, तो कुछ और ही हो गया। एब्सोल्युटली। और ये हम पीते हैं बिकॉज वी हैव द लग्जरी ऑफ ओपनिंग द पैकेट, यूजिंग इट, देन अगेन पुटिंग इट बैक, अगेन यूजिंग इट, अगेन बैक, एंड इट गिव्स अस दिस एडवांटेज ऑफ जब मेरा मन करता है वाइट जैसा कुछ मिल्क जैसा मुझे मिलता है। पर वो मिल्क नहीं है, उसके अपनी और इश्यूज हैं जो अगेन बहुत से लोगों को जो दूध से ब्लोटिंग होती है या मिल्क उनको डाइजेस्ट नहीं होता है, इट ऑल्सो हैपन्स बिकॉज यूर consuming pasteurized homogenized milk, while A1 type gene is also playing a part. करेक्ट। So there is a rising, society where there are people who are unable to consume milk. हाँ। ठीक है, and the doctor tells them दूध बंद कर दो. हाँ। Not a very good advice. It's just like saying कि ये कभी ठीक ही नहीं हो सकता है। भाई आप अपना सोर्स चेंज करिए, आप सही जगह से लीजिए। एंड कंज्यूमर में बहुत पावर होती है। कंज्यूमर अगर क्वेश्चंस पूछेगा, इफ ही और शी आस्क्स द राइट क्वेश्चन, गाय कहाँ पे है दिखाओ, कैसे मिल्किंग करते हो, एथिक्स हैं आपके पास या नहीं है, और वो बोल सकता है कि भाई मैं ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाता हूँ। ठीक है, मैंने ऐसी बहुत जगह देखा है कि बहुत पढ़े लिखे लोग एक डेयरी पे गए, दे आर टॉकिंग, पीपल आर चैटिंग, एंड द पर्सन इज पुटिंग ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन इन फ्रंट ऑफ देम, अच्छा। बिकॉज ही सेज आपको लेना है तो लो, मेरे पास तो काफ और ये है नहीं, मर जाते हैं या मेरे पास जगह नहीं है, मैं तो इंजेक्शन निकाल कर ही दूध देता हूँ, अब आपकी चॉइस है। एंड दे आर लाइक हाँ ठीक है, वो तो दूध तो निकल ही रहा है। दे आर फॉरगेटिंग बॉस ऑल दिस ऑक्सीटोसिन इज गोइंग इन द मिल्क एंड इट्स क्रिएटिंग इश्यूज, एंड दैट्स व्हाई यू हैव पीपल who are very aggressive in nature. You have people who've lost their childhood
they've matured much earlier than they should have had. All this is unfortunately due to the hormones that are injected in the food chain. Because this is a big one, because a lot of moms that I speak to are very scared that if they give milk to their girls, then they'll, क्योंकि ये तो establish ही हो गया आपकी भाई you can reach puberty early, you can get like at the age of 8-9 girls are hitting puberty because of the milk that they're consuming, which is highly estrogenic. It makes more estrogen, and that's why girls are hitting puberty, and obviously breast cancer or hormonal issues, endometriosis, वो तो list बहुत लंबी है. जी. तो उसमें obviously big no to the commercial milk. Definitely need to find out कि कहाँ से आप सोर्स कर रहे हो, और अच्छे सोर्सेज को आप थोड़ा प्रमोट करिए, बहुत ज़रूरी है, ताकि उस तरह के फार्मिंग हमारे पास होने लग जाए, प्रॉफिटेबल भी हो, जितने ज़्यादा लोग खरीदेंगे उतना उनका फ़ायदा होगा. और जो एग्जिस्टिंग फार्मर्स हैं जिनको लग रहा है यार ये लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, ये महंगा भी बिक रहा है, ये प्रॉफिटेबल भी है, तो मैं भी कर सकता हूँ इसको फ्यूचर में. Absolutely, yeah. तो you brought up a very valid point. पहले तो हमें समझना है कि the girl child also needs milk. हाँ. She has equal needs and milk, good milk, उसका right है. हम नहीं दे पा रहे हैं, ये हमारी गलती है. ना देना उसका कोई solution नहीं है. जैसे you've also answered it कि we need to find the right sources, and when people will find कि अरे ये तो यही वाला prefer कर रहे हैं, ऐसा चाहिए, हाँ. तो when the demand rises, the supply also starts to rise. Demand supply हमेशा मार्केट में ऐसी होती है. आप टमाटर खा रहे हैं तो टमाटर ही उगने लगेंगे ग्रीन हाउस में. नेपाल से भी टमाटर उगने लगते हैं, और वो साइकिल्स भी सेट कर लेते हैं कि इस समय टमाटर इंडिया में कम होते हैं तो वी विल सप्लाई. सो कमिंग बैक टू दिस काउ थिंग, any parent should be informed that hormones in any food chain is not good. वो जो नेचुरली है वही ज़रूरत है. और हम अगर दूध उत्पन्न कर रहे हैं एक्सटर्नल हार्मोन्स लगा के, और वो क्यों होता है मैं बताता हूँ. देयर इज अ काउ इन अ नॉर्मल डेयरी. जैसे आप गाजीपुर चले जाएं और आपको नर्क देखना है, तो वो जगह है, एक बार जरूर जाना चाहिए. ड्यू रिस्पेक्ट तो जो लोग वहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, मैं सल्यूट करता हूँ. उस कूड़े के ढेर के पास एक तो वो इशू है. दूसरा, वहाँ पर एक बहुत बड़ी डेयरी इंडस्ट्री है. अच्छा. जिसमें बफलोज हैं, जनरली काउस भी है थोड़ी. उन बफलोज को, जिस रूम में हम बैठे हैं इसमें 50 बफलोज होंगी, नेक टू नेक टाइट, very close to each other with a iron chain, and उनका बस एक ही काम होता है, खड़ा होना, बैठना. और उनकी टाइमिंग ऑफ फॉडर एंड वाटर इज ऑल्सो सिंक्रोनाइज्ड. उसी जगह जहाँ वो खाना खाती हैं, जब वो खाना खा लेती हैं तो द पर्सन हु इज द केयर टेकर विल रिलीज वाटर दैट सेम प्लेस. अब उन्हें पता होता है बफलोज को कि भाई अगर हमने अभी नहीं पानी पिया तो हमको मिलेगा नहीं, तो वो उसी समय पानी पी लेती है. फिर उनको फॉडर मिलता है या जो भी चीज़ उनके साथ होती है, मिल्किंग होती रहती है. इफ़ दे स्टॉप मिल्किंग और द टीथ्स को बैड, वो थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके देखते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं तो दे सेंट इमीडिएटली टू द बुचरी. तो दे जस्ट स्टैंड एंड सिट until the day they're opened. Opening is for you're welcome to the butchery. They're culled there itself, meat gets sold and everything else is used. Now ऐसी जगह they don't have a place, they don't have the intent कि the calves that are born should be kept well as well, because that's the progeny you have. But I don't care, I just will take the I will buy the buffalo and उसी को मैं यूज़ करूँगा. मैंने 1 लाख रुपए लगाए हैं, मुझे 1.5 लाख मिलने चाहिए इससे, सब कुछ लगा के मेरा फ़ायदा हो गया. I don't care beyond that. So I'm very short-sighted, myopic in my view. तो जो लोग जा रहे हैं, जो लोग दूध उनसे खरीदते हैं, क्या उन्हें पता नहीं है? बहुत लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है. जिनको पता है उन्होंने अब ये सोच लिया कि ऐसा ही होता है शायद, क्योंकि उन्होंने सही मिल्किंग ही नहीं देखी कि क्या होती है. करेक्ट. सो सही मिल्किंग क्या होती है? यू रिलीज द काफ, इट गोज रन्स टू द काउ, शी विल एक्सेप्ट द काफ, शी स्मेल्स कि ये मेरा ही बच्चा है. बहुत कम काउस औरों के बच्चे एक्सेप्ट करती है. अच्छा. उनको पता होता है. वेरी नाइस. तो और वो उसको बहुत पीटती नहीं है, बस हल्का सा नज करेंगी कि गो टू योर मदर, डोंट कम टू मी. ओके. बट हाँ, सो बिकॉज शी कैन रियली पुश वेरी हार्ड एंड द काफ कैन गो फ्लाइंग फॉर meters and he or she can die. So they know the push, what's a gentle push and what's a hard kick. Okay. So they would do that, and she will accept her calf, and the calf will also go to her mother. So you got to come to Heda, you'll see this. They will run very fast to the mother. हाँ. And when they reach the mother, उसके ब्रेन में जहाँ उसका फोरहेड होता है वहाँ पे एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है. The cow releases the oxytocin herself. Yeah.
and the milk gets released and everybody benefits from the milk. But if I do not take care of the calf, which happens in lot of dairies unfortunately, तब आपके पास ऑक्सीटोसिन रिलीज होने की जो पूरी आपकी प्रक्रिया है वो खत्म हो जाती है. So there is no calf. The cow doesn't feel the need कि why should I release the milk Yeah. only for you? My calf is not there. Hmm. So there comes the bad dairy person. And he says, hold on, I will generate the oxytocin by injecting this oxytocin in you through an injection, which is banned in India, but still being used and widely available in spite of the ban. Okay. G, it's banned. Or then the cow body is made to feel as if the calf is there and she's supposed to release the milk. In fact, there are now basically chips available which keep releasing this hormone or this electric pulse, which makes the cow feel that she's always pregnant and in that milking state. Usse she loses her bone density and that whole natural cycle कि आपने 6 months milking की या 5 months milking की फिर आपको रेस्ट मिला अब वो सब खत्म हो गया तो काउ की जो एज है वो अपने आप बहुत कम हो गई. ये ऑल्सो फ्रीजन काउस के साथ बहुत हो रहा है. दे पुटिंग दिस चिप and that's making the cow behave like an industry rather than an entity which is living, which needs its own space. So this is bad dairy. And this bad dairy, unfortunately, is thriving Yeah. because very few people are asking the question that you've asked. कि where is my milk coming from? Is it ethical? Can I see the cows? Can I see the calves? So I tell people, how do I find this? So it's very simple. Go to any dairy or a goshala. Tell them, I just want to meet the kids. मुझे calf दिख रहा है. वो मुझे सब आंसर दे देगा. उनकी हेल्थ मुझे बता देगी कि क्या है. आपके पास अगर मेल काव्स नहीं है भी कुछ है उसमें कैसा ऐसे आपने किया चलिए आपने सेक्सेड सीमेन यूज करके सिर्फ फीमेल्स किए तब भी कुछ परसेंटेज तो जरूर होने चाहिए. तो सारा आंसर सिर्फ काव्स देखकर आपको मिल जाए तो बहुत ज्यादा रिसर्च की आपको जरूरत नहीं है. बिल्कुल. काव्स हेल्दी होंगे तो उसको मतलब उनका शेयर मिल रहा है. ठीक है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो एक एथिकल डेयरी है या गौशाला है. That is where I recommend all parents and all people who drink milk and who understand the importance of milk. Yeah. That please go and visit places, the gaushalas, the dairies from where you source this milk. If you will ask these right questions, chances are the people who are taking the unethical path will be forced to think, rethink, Absolutely. get back to the ancient way of milking, which is beneficial for humanity, for Mother Earth. एब्सोल्युटली. सो हमने ये सुना है कि काऊ बहुत इमोशनल प्राणी होता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर ऑलमोस्ट ह्यूमन लाइक फीलिंग्स होती हैं. तो आपका क्या एक्सपीरियंस है काऊ की क्या मतलब क्या क्वालिटीज़ होती हैं जिससे कि हम एज ए ह्यूमन ऑल्सो वी कैन इनहेंस आवर इमोशनल वेल बीइंग एज वेल बाय बीइंग अराउंड काउज. So this cow patty thing going on now for the right reasons. ये बात सच है कि cows exhibit emotions very similar to humans. She can be sad, she can be happy, she can come to you and seek a pat, and she, if angry, she can also kick you. Okay. It happens, you know. Cow recognizes you. So there are cows in my herd which are my friends. So if they see me, they come running. अच्छा. Doesn't happen with other cows. So they're not basically that they don't like me, but they're like keep the distance. हाँ. पर ये जो cows में कुछ ये कहती है, oh, Mr. Rawat has come, so they run and they come to me for a pat or a carrot or a gourd, you know, that kind of stuff. So there's a human bond relationship. And you have names for everyone? For some of them, Yeah. to be honest, because we are 1100 plus cows and bulls. Wow, okay. I would love to have that memory, Yeah. but I don't have that elephant memory. Yeah. Maybe one day. Okay. By the to milk. But I remember all the cows, you know, their lineage, you know, and whose was the bull used, which was the mother, that kind of stuff, because they have keen interest in my farm. And that takes all of my day. Right. Okay, तो गाय के ऊपर जब आप थोड़ा सा हाथ लगाते हैं, so the skin of the cow moves. So it's kind of a vibration that happens. Yeah. The vibration goes through your hand and to your brain. And there are people who are suffering from depression have benefited. So there's a lot of research that has gone down कि अगर आप lonely feel करते हैं तो come and sit near the cow. She will come and cuddle you. You can
be with the cow, and they allow humans to basically be part of their herd. रात में अगर मैं जाता हूँ तो जो मेरी सेट ऑफ काउज है वो एक जगह होती है, और कुछ जो नटोरियस होती हैं उनका गैंग अलग होता है, अच्छा। जो ऐसा होता है कि कुछ अलग तरह की सैड हैं, मतलब कि फेस ऐसी लगती है, तो उनका एक अलग हर्ड होता है। जैसे ह्यूमंस होते हैं वैसे काउज होती हैं, सब काउज एक साथ नहीं बैठती है, बिकॉज वी हैव अच्छा। ओपन फार्म, नो काउज आर टाइड एक्सेप्ट व्हेन यू हैव टू मिल्क देम, हाँ। टाइम नीड सो दैट देयर इज नो मिसहैप, बट अदरवाइज देयर ऑलवेज ओपन। तो Okay. वो हर्ड देखने लायक होता है कि वो कैसे कैसे क्या चूज किया हुआ है। अच्छा। सब एक साथ नहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, अपनी चॉइस के हिसाब अपनी से वो personality बैठे के हैं। हिसाब हाँ, से। पर्सनालिटी के हिसाब से। सो दे सडनली हैव पर्सनालिटीज, दे सडनली हैव देयर ओन IQ एज ह्यूमंस, दे हैव देयर ओन टेम्परामेंट। कुछ काउस और बच्चों को एक्सेप्ट करती है। अच्छा। आई हैव काउस, यू कैन रिलीज एनी काफ, शी विल Milk. ensure Provide that the the milk. calf gets the milk. There are cows, if the child is not there or sick for one day, she will never give you an ounce of milk, no Okay. matter what you do with her. It's very adamant, very clear, no confusion in her कि आज तो मैं दूध नहीं दूँ क्योंकि मेरा बेबी सिक है, Okay. तो ठीक है। Okay. So that day you leave. Okay. You have to respect that distance Yeah. and what she has thought. Indian cows are temperamental as well. They're strong-headed. Okay. HF Jersey are like machines because of the size they've been developed into and the amount of milk they carry. So they don't need the calf. They've got used to कि मशीन लगाओ, हल्का सा वाइब्रेट करेगी तो लगता है हाँ दूध देना है. So they've forgotten this whole thing of कि calf ऑक्सीटोसिन अपने आप नेचुरल रिलीज हो, मिल्क मिले, वो साइकिल भी टूट गई. अच्छा। ठीक है, तो विच इज ऑल्सो वेरी डेंजरस. अब ये पार्लर तेरा तो बहुत बड़ी कंपनी है, दूध आता है ऑल ओवर इंडिया जाता है, आई वोंट वांट टू नेम दैम. तो पार्लर सिस्टम है. द अच्छा। काउज आर देयर ऑन अ वेरी बिग डिस्क, दे आर रोटेटिंग वेरी स्लोली, सो दे गेट दिस काइंड ऑफ एक कि आप घूम रहे हो तो आप स्टेबली खड़े रहोगे डर के मारे या जैसे भी. सो इट इज इंड्यूस्ड इन यू. The machines are put automatically, they milk and they write not touched by hand. So is this a good thing? Is it a bad thing? Where is the calf? God knows. Yeah. How's that whole oxytocin thing happening Yeah. now? ठीक है, again, what are you doing with the old cows? Very few people write कि ये old cows मेरी यहाँ रहती. भाई आप जब कमा रहे हो, जो भी आप कमाते हो डेयरी से, and dairy does give you money, तो एक पोर्शन आप ओल्ड काउस के लिए क्यों नहीं रखते? उसने आपको 2 years, 3 years, 6 years, 5 years मिल्क दिया. You have gained something. Time to repay back already. Absolutely. And old cows don't eat that much. Why are you not doing it? Because most of them are run by corporates, which are under this quarterly pressure, and you want only profits. And the old cows and bulls are not your assets. Yeah. There are liabilities. तो जब आप assets liability में खो जाते हो तो वो कहते हैं यार अगर 10 लाख भी जा रहा है तो क्यों? अगर हटाओ उनको यहाँ से. I just want the real milkers, Yeah. the good milkers, जो है ये लेकर आओ इसराइल से, ये यूरोप से, ये अमेरिका से, and I want this milk, and I will do this whole प्रचार, with this great milk coming, with the machines, with no human touch, Human touch. and some good nice fodder, and and बहुत सी डेयरीज में मैंने आज की जो A2 का कॉन्सेप्ट देखा, हास्यास्पद भी है. द काउ शोन इज एन HF काउ, मैं बहुत अच्छी ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ. अच्छा। काउ शोन इज एन HF काउ, रिटन नीचे A2 गियर मिल्क. और फोटो तो सही लगाओ, बिकॉज फोटो जिसने बनाई है उसको नहीं पता कि ये कौन सी काउ है. Correct. जो बेच रहा है उसको भी नहीं पता वो क्या कर रहा है, बट ही इज देयर समवेयर इन द चेन मेकिंग मनी. हाँ. यू आर नॉट केयरिंग फॉर द काउ, यू आर नॉट अवेयर व्हाट द गियर लुक्स लाइक, बट इट इज देयर. ठीक है, एंड इट इज नॉट गुड. इट Yeah. शोज दैट whatever you're doing is not authentic. Yeah. So somewhere you will lose out on the long run. People will find out. People have this knack of finding out things. Your consumers will do that eventually. But आपने बहुत लोगों को उल्लू भी बनाया फिर उस पूरे प्रोसेस में, जब तक आप पकड़े नहीं गए और बिजनेस Correct. पार नहीं हुए. तो वो चीज आई थिंक दैट नीड्स टू स्टॉप. कंज्यूमर्स ऑल्सो शुड लुक एट वेरी केयरफुली कि क्या लिखा है पैकेट पे. Yeah. बिल्कुल. Pasteurized है, homogenized है. Just don't look at the money, which is important. Also look कि क्या वो वर्थ इट है. अगर आप कम पे कर रहे हैं कि आपको सही चीज मिल रही है कि नहीं. और एक टाइम तो ऐसा था जिसमें वी फुली ऑब्सेस्ड विद कि कितने परसेंटेज फैट है, टोन्ड है कि नहीं, टोन्ड है कि नहीं. एवरीबडी वाज लाइक टोनिंग थिंग्स आउट एंड देन ड्रिंकिंग द मिल्क. नाउ दे आर सेइंग नो, द फैट इज गुड, बट नाउ इट्स कमिंग बैक टू दैट जितना क्लोज टू द नेचर होगा उतना बेटर है.
तो एक चीज़ हम ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे कि दूध को कैसे गर्म करना चाहिए ताकि हम उसके गुड प्रोटीन, गुड क्वालिटी क्लास 1 प्रोटीन जो जिसको दूध को कहा जाता है, बिकॉज माई मॉम यूज टू टेल मी व्हेन शी वाज ग्रोइंग अप शी वुड ड्रिंक milk directly from the cow, and it was considered to be class 1 protein. They used to never heat it up, never pasteurize it, and just drink it like that, and it was the first quality protein, which is not possible. We'll have to pasteurize it, heat it up a little bit to kill the microbes. तो what is the right way कि हम जो दूध आपके यहाँ से आ रहा है उसको हम किस तरीके से घर में यूज करें? Good point. So let me just kind of elaborate on this. So if you have a cow very close and and she's just milked, so within a couple of minutes, say 10 minutes, it is still warm on 32 degrees Celsius, your body temperature रहेगा. तो अभी उस मिल्क को आप लेके डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं तो उसको बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हुई है. अगर वो क्लीन निकला है, आपका वेसल साफ है, वो चीज़ है. पर जब आप दूर रहते हैं और मिल्क को भेजना है तो पैसे भी आप पैक करेंगे विदाउट पैस्चराइजेशन, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स, तो उसमें कर्डलिंग बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली शो हो जाते हैं, दूध दही बनने लगता है. करेक्ट. ठीक है, और उसका नेचर है ऐसा. तो प्रोटेक्ट करने के लिए आप उसको चिल कर सकते हैं 4 डिग्रीज पे, जो हम करते हैं, कुछ लोग और करते हैं, ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ सप्रेस की जा सके ठंड की वजह से. ठीक है, अब उसके बाद भी जब आपको दूध मिलता है तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप उसको एक लो फ्लेम पे, एक थिक बेस के वेसल, ताकि वो नीचे से लगे नहीं, उसको आप गर्म करें ताकि वो एक उबाल आपको मिल जाए. तो जो भी बैक्टीरिया अगर उसमें ग्रो किया है वो उसी टाइम चला जाएगा. तो बहुत कम प्रोटीन आप अपना होते हैं उसमें. अगर आप उसे हाई फ्लेम पे करते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिनेचर कर देंगे, तो वो बहुत एडवाइजेबल नहीं है. ओके, गॉट इट. ओके, लेट मी जस्ट हैव अ लुक एट माय क्वेश्चंस. कुछ छूटा We can talk about the ghee, the use of ghee. या ठीक है. मिल्क के बारे में तो हमने काफ़ी चर्चा कर ली. अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है घी, विच thanks to the West, they've made it very popular now. Suddenly everybody's waking up to ghee. They're talking about Billona ghee, A2 cow ghee and things like that. तो घी के बारे में कुछ बताइए कि कितना थेरेप्यूटिक होता है. आपने कुछ बताया था ऑफ द कैमरा कि गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए. So, I mean, as I talk to you, there is a French delegation that is coming together today. अच्छा. Again, researching on Indian cows, the value of A2 milk, the value of ghee, and I had an opportunity to speak to them some time ago. They've learned Hindi. They've figured out the benefits of the Indian cow. They're doing PhD on it funded by their university. And very recently, a couple of months ago, we had delegation from Germany. They were all farmers. They came all the way from Germany, Switzerland, to find out how daily practices in India are. They went to many bigger farms of Holstein Friesian cows, exotic cows. What their guide told me was that they were very thrilled to be in Heta when they found this kind of culture of not killing the cow. It was very different from what they've been used to. And Germans are supposed to be very strict with their, praises. They're very hard to get a praise out of them, is what they tell me. And the guide was telling me that the first time in the world tour, which is about to finish, is when they said, we liked this place. Wow. So that says a lot. Yeah, I mean, so just coming back to how the West is basically acknowledging the benefits of good milk from indigenous breed of cows. So as their acceptance of milk rises, let's also ensure that we Indians, whose cows have gone abroad and Brazil, and they're making everybody rich by their milk and wealth, we all should benefit. Ghee, as per Ayurveda, is the food of God. Ghrita is the only thing that reaches the brain as per Ayurveda. It's a carrier. अगर आपको कोई औषधि अश्वगंधा ब्रेन में पहुंचानी है, मैं खाऊंगा, मेरे पेट में जाएगी और फ्लैश आउट हो जाएगी. वो ब्रेन तक कैसे पूछ? तो आयुर्वेदा कहता है कि उसको आप नस्य के रूप में, नस्य में आप घी से बनाते हैं. तो अश्वगंधा घी आप अगर बनाते हैं, वो आप नाक में डालते हैं, तो वो आपके ब्रेन में अब्जॉर्ब होता है. ओके. ठीक है. तो आयुर्वेदा में घी बहुत सारे मेडिसिन के साथ दिया जाता है. बिल्कुल. बिकॉज द कैरियर. और घृत के लिए वो बहुत क्लियर है कि दही से बिलोए हुआ
मक्खन और उससे पिघला हुआ घी ही घृत है। करेक्ट। बाकी और जो बना रहे हो क्रीम से डायरेक्टली, मलाई से जो हम घर में कभी कभी लोग बना लेते हैं, वो आयुर्वेदा उसे घृत नहीं जाता है, क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स ऑफ मिल्क नहीं आए। अच्छा। वो कहता है कि दूध लो, दूध की दही जमाओ, दही को मिलो के मक्खन बनाओ, मक्खन से घृत बनाओ। ठीक है, तो वेरी क्लियर दिस पार्ट। और इसलिए आज के लिए बिलोना का कॉन्सेप्ट आने लगा है, लोग उसको ज़्यादा रिचर पाते हैं। रिसर्च ये भी बताती है कि इसमें ज़्यादा डीएचए होता है जो ब्रेन के लिए यूजफुल होता है। तो बिलोना घृत में डीएचए ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू क्रीम बेस्ड घृता। और भी कुछ चीज़ें आप फाइंड आउट होती जा रही धीरे धीरे कि इतनी मेहनत के बाद जो आप 30 लीटर दूध लगा के घी बना रहे हैं उसमें, और 5-6 लीटर से जो क्रीम से घी बना था उसमें क्या फर्क, करेक्ट। तो क्यों मैं इतना पैसा लगाऊं उसमें। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, सो दे स्टार्टेड टू फाइंड आउट। सो आयुर्वेदा के हिसाब से अगर आपके पास हार्मोनल इश्यूज हैं, पीसीओएस से पीसीओडी में देखते हैं, तो उसका क्या इलाज है, तो कहता है 2 चम्मच घी। वाह। घी उसका इलाज है। तो एक छोटी सी बच्ची को आप अगर 2 चम्मच घी बचपन से देने लगे तो उसको कोई और बीमारी हो ना हो, लेकिन उसको हार्मोनल इश्यूज नहीं होने वाले। ओके। ठीक है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। और बहुत से ऐसे लोग हु वांट हैविंग चिल्ड्रन, दे स्टार्टेड दिस थेरेपी ऑफ घृता। Right. ठीक है, देसी काऊ बिलोना घी होना चाहिए। कोई और पराग और मतलब सॉरी किसी और ब्रांड का आप हाँ। ध्यान से देखें कि वो जो घृता है वो आप बिलोना मेथड से बनाओ, और वो देसी गाय का हो। भैंस का भी नहीं चलेगा, देसी गाय का चलेगा। उसको आप 2 चम्मच अपनी डाइट में लें। आप गट के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है, डीएचए उसमें, आपके जोड़ों के लिए बहुत जोड़ों अच्छा के लिए। है। ठीक है, और आपके हार्मोनल इश्यूज को वो जो है सप्रेस करके रखता है। आपको कोई इस तरह का इशू होगा ही नहीं अगर आप उसके रेगुलर कंज्यूमर हैं। तो अगेन, कैनॉट एंड शुड नॉट कीप द गर्ल चाइल्ड अवे फ्रॉम डेयरी। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूध से कैल्शियम, कार्ब्स, प्रोटीन जो है ये सब मिल रहा है, और घृता से और जो चीज़ें हैं वो आपको मिल रही हैं। तो बहुत से लोग रोटियां घी में डुबो के खाते थे, उसका एक रीज़न होता था, वो ज़रूरी है आपके लिए। और अब जैसे आपने बताया, वेस्ट इज रिजन टू द फैक्ट दैट घी से आप मोटे नहीं हो रहे हैं, हाँ। आप बैड फैट से मोटे हो रहे हैं। जो डालडा हो सकता है, आपका पाम ऑयल हो सकता है, फ्राइड चीज़ें हो सकती हैं, ट्रांस फैट्स हो सकते हैं, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं। लेकिन घृता इज गुड, घृता इज एलिक्सर ऑफ लाइफ, घृता इज फूड ऑफ द गॉड्स, मस्ट हैव इट। वेरी गुड। एंड क्या एक इंडिकेटिव फैक्टर ये हो सकता है कि बिलोना घी जो आप लेंगे वो थोड़ा महंगा होगा एज कम्पेयर टू अदर घी दैट इज देयर इन द मार्केट? जी, उसका एक रीजन है कि थोड़ा सा महंगा इसलिए पड़ता है। वो आपको 30 लीटर दूध ऑन एन एवरेज, कभी 25 भी हो सकता है, कभी 35 भी हो सकता है, ऑन एन अच्छा। एवरेज 30 होगा, बेस्ड ऑन कितना फैट उस समय दूध में है। Correct. उसकी आपने दही बनाई, दही सही से जमी, उसको आपने बिलोया, मक्खन Correct. आया, मक्खन को पिघला के आपने घी बनाया, तो इसको बिलोना मेथड कहते हैं। इसमें आपका 30 लीटर जो दूध था वो लगा, और आपको घी मिला दे 1 लीटर। 1 लीटर, अच्छा। लगभग 910 ग्राम के आसपास। और लेकिन उसमें जो छाछ बची आपकी लेफ्ट ओवर, जो गट के लिए बहुत अच्छी है, और आयुर्वेदा छाछ को दूध से भी अच्छा मालूम होता है। करेक्ट। पर अगेन द बिलोना छाछ, ठीक है, इस छाछ में आपको जो है बहुत सारा मक्खन भी तैरता हुआ दिखेगा, क्योंकि वो पूरा निकल नहीं पाता, 2% के आसपास रह जाता है उसमें। लेकिन ये सेल नहीं हो पाती इतनी अच्छी, क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी ये खट्टी होने लगती है। करेक्ट। इसमें प्रेजर्वेटिव्स आपने डाले नहीं डाले, सोडियम बेंजोएट, लेकिन उससे बहुत फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और फिर हम तो हेता में उसको गायों को वापस देते हैं। अच्छा। कुछ कस्टमर्स भी लेते हैं, और गायों भी बहुत खुश रहती हैं, गट उनका बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज इट्स वेरी रिच इन सो मेनी थिंग्स। ठीक है, और छाछ अकेली एक ऐसी चीज़ है, ऐसा लिक्विड है जो आप खाना खाते समय पी सकते हैं। आप पानी नहीं पी सकते आयुर्वेद के हिसाब से खाना खाते हैं, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं पी सकते। लेकिन छाछ आप पहले भी पी सकते हैं, बीच में भी पी सकते हैं, बाद में भी पी सकते हैं, तो कुछ तो है उसमें। ठीक है, तो आयुर्वेदा हैज वेरी हाई प्रेज ऑफ घृता एंड दिस छाछ। छाछ। तो 30 लीटर और कहाँ 5-6 लीटर जो क्रीम से आपका घी बनता है इंडस्ट्रियल कमर्शियल लेवल पे, क्योंकि वो दूध आपका अभी भी दूध है, वो टोन्ड मिल्क है आपका। करेक्ट। तो आपने टोन्ड मिल्क बेच दिया, जी। यहाँ पे आपका जो बाई प्रोडक्ट है वो छाछ है, बटर मिल्क, जो खट्टी हो चुकी है। तो इसलिए जो प्राइस का डिफरेंस है वो इतना है। ठीक है। एक चीज़ और मैंने देखी थी कि आप जो खाना खिलाते हैं जो अपनी काउस को, वो बहुत हाई क्वालिटी का होता है। ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी देख रही हूँ बिटवीन मदर्स मिल्क एंड काउस मिल्क। सो इन मदर्स मिल्क ऑल्सो वाइल शी इज़ ब्रेस्ट फीडिंग, हम बोला जाता है कि भाई आपका पोषण बहुत अच्छा होना चाहिए, और आप जो खा रहे हो उसकी स्मेल आपके दूध में आएगी। तो
what kind of food are you giving your cows which can make them give better quality milk? I mean, so quality of fodder is quality of milk. And in Heta, what we try is कि जो भी सीजन चल रहा है, जैसे कभी जब गाजर का सीजन होता है तो हम बहुत गाजर खिलाते हैं, अच्छा और उस समय बहुत से हमारे कंज्यूमर्स फील करते हैं कि उनकी आई साइट बेटर हो रही है। अच्छा बहुत से कंज्यूमर्स हमारे विंटर में जो जहाँ भी रहते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो हिता का मिल्क ले। बीटरूट, कैरेट्स आर मेजर ड्यूरिंग विंटर्स। Okay. देन शुगर केन, पूरी शुगर केन देते हैं, उसे चॉप करते हैं चॉपर से, तो उसमें पूरा फ्रुक्टोज ग्लूकोज होता है, तो हमारा जो मिल्क है उसमें नेचुरल मिठास होती है। अच्छा इस वजह से, क्योंकि पूरा शुगर केन है, इट्स नॉट जस्ट द लीफी पार्ट ऑफ इट, द लीफ। the actual sugar cane. और फिर गुहार गम, ये राजस्थान में बहुत एरिया में होती है, रिच इन प्रोटीन। देन सरसों की खल, Okay. cows need protein, its protein comes from guar gum and खल, ठीक है। देन देयर आर द ग्रीन फॉडर्स हैं, हम हाइड्रोफोनिक फॉडर भी देते हैं, अच्छा ग्रास उगाते हैं। वीट ग्रास, अगेन एज यू नो, लॉट ऑफ कैंसर पेशेंट्स टेक दैट। yeah. So, जो गाय ये खाती है वो उसके मिल्क में आता है क्वालिटीज, तो एवरी मिल्किंग काउ गेट्स दिस एडिशनल राशन। अदर काउस गेट एवरीथिंग एल्स व्हिच वी जस्ट स्पोक अबाउट। सो फॉडर इज वेरी बैलेंस्ड। गर्मियों में ज्वार भी कोशिश करना शुरू कर देते हैं, ड्राई ज्वार इज वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड फॉडर। भूसा पुराल, रेयर कंडीशंस में अगर फॉडर नहीं मिल रहा है तब हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारा स्टेपल फूड नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। बहुत सी डेयरी सिर्फ ये खिलाती है। और डेयरीज में एक चीज़ मैंने और देखी है एनसीआर रीजन में, यहाँ पर बहुत सी बियर फैक्ट्रीज जो हैं, हाँ वहाँ से ये बियर की जो बची हुई जौ होती है, मोलासेस जिसको बोला जाता है हाँ वो बेसिकली उसको यूज़ करते हैं, तो उसमें अल्कोहल कंटेंट होता है बहुत, जो बची हुई जौ है, एंड उससे वो जो गाय है उसके लीवर किडनीज पे भी फर्क पड़ता है, और दूध में एक अलग तरह की बदबू आती है। अच्छा तो डेयरीज, अगर आप जैसे गाजीपुर चले गए तो आप जब वहाँ क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि भूसा पड़ा एकदम से, एक ट्रक भूसा लेके आएगा, एक ट्रक ये जो बची हुई जौ है जो बियर फैक्ट्री से आती है, जो बहुत सस्ती मिल जाती है इनको, 1 रुपए 2 रुपए किलो, उसको ये डालते हैं, एंड दैट्स द फॉडर ऑफ दैट। that's really bad. हाँ, सो अब आप उससे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एक Good quality good milk quality देंगे। दे। तो बहुत सारा दूध जो इस ऐसे एरियाज में उत्पन्न होता है, यू कैन नॉट इवन स्मेल इट। ठोस की दही जमा कर आप बहुत सी जो पापड़ी चाट खाते रहते हैं, ऑलिव ऑफ दिल्ली, वो सब वो है, अच्छा उसका कर्ड बना देते हैं उसको, ताकि Okay. उसकी स्मेल Smell सप्रेस हो कम हो जाए, जाए। और फिर मीठा मीठा और कुछ और फ्लेवर्स डाल के इट इज कंज्यूमेबल, ओके ठीक है। और इट गोज टू द आइसक्रीम फैक्ट्री, कुछ है, सो वहाँ पे तो फ्लेवरिंग हो जाती है। तो अगर आपने उसका दूध पिया, आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी क्वालिटी में कुछ तो गड़बड़ है, क्या ऐसा है इसके। आप ये भी बता रहे थे हमें कि ब्राज़ील के जो प्लेयर्स हैं वो अपने साथ अपना दूध लेके चलते हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन दैट दे गेट, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि लोगों को पता चले कि अगर वो क्लास 1 प्रोटीन काउ A2 काउ से लेंगे तो दे कैन ऑल्सो बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एथलीट्स एंड बिकम रियली गुड स्पोर्ट्स पीपल एज वेल। जी, ऑब्वियसली। सो अभी ब्राजील की बात में मैं ये ऐड करना चाहूँगा आपके कि बहुत बड़े पैस्चर्स हैं ब्राज़ील के पास, फॉडर के, ग्रास के। वो नेचुरल ग्रास उगाते हैं, बहुत एफर्ट किया उन्होंने। इंडिया से दूब ग्रास, अफ्रीकन ग्रास लेकर आए, उन्होंने पैस्चर्स में लगा दी। उनकी गाय सिर्फ चरती, अच्छा सुबह छोड़ो। हमारे हिंदुस्तान में पहले होता था, पहले होता था। कि अभी गाय चरने गई और वो गौ धूली की एक वेला होती थी, वो वापस आ रही है, जो धूल उड़ती थी वो अच्छा मानी जाती थी। तो वो कब होगा, जब कुछ होगा ना चराने के लिए आपके घर। आप एक छोटे से कमरे में हम गाय रख ले तो क्या होगा, कहाँ जाओगे आप स्टॉल फेड करोगे। तो वो इम्पोर्टेंस ऑफ फील्ड्स एंड पैस्चर्स ब्राजील ने मेंटेन किया हुआ है, ओके और उसको एडवांटेज मिलता है कि काउस भी हेल्थी हैं, बिगर हो जाती हैं, सेम जीन है, अच्छा उसको अच्छा खिला रहे हो आप, धूप पड़ रही है उसके ऊपर और वो चले जा रही है, खाए जा रही है घास, तो वो और कुछ फीड ही नहीं देते, उससे ग्रास पे रखते हैं, तो मिल्क क्वालिटी बहुत सुपर होती है उनकी। ओके और उनकी जो जो एथलीट्स हैं, उनके जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, या जहाँ भी न्यूट्रिशन की डिमांड ज़्यादा है, कि उनको क्लियरिटी है कि मुझे अच्छा फीड मिलना ज़रूरी है, नहीं तो मैं उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो A2 मिल्क इज़ वेरी बिग इन दीज कंट्रीज। Okay. और वो उस पर बहुत ध्यान देते हैं कि क्योंकि गिर काउज रखते हैं, तो गिर गाय का दूध रखते हैं, और गुड क्वालिटी मिल्क अपने साथ जहाँ में ट्रैवल करते हैं वो जाता है, Okay. ठीक है। और ये चीज़ वर्ल्ड वॉर में मैं कहीं पढ़ रहा था कि वर्ल्ड वॉर में इस पर रिसर्च हुई कि जो बुलेट इंजरीज हुई सोल्जर्स जो इंडिजिनस ब्रीड ऑफ काउस पे थे, जो उनको डाइट मिलती थी, उससे उनकी रिकवरी बहुत तेजी से हुई,
जो हॉल्स्टन फ्रीजन या एग्जॉटिक ब्रीड्स का मिल्क लेते थे वो उनके गैंग्रीन सेटअप हो रही थी अच्छा। सेम टाइप की बुलेट इंजरी पे, और रिकवरी बहुत स्लो थी। तो ये लोगों ने ऑब्जर्व किया कि A2 जीन अगेन इसमें पार्ट प्ले कर रहा था कि A2 मिल्क जो है वो अपनी बॉडी के लिए किन किन चीजों में फायदेमंद है, कि जब आप रिकवरी पर हैं, एक्सीडेंट हो गया आपका, तो गेट ऑन टू A2 मिल्क एंड यू विल सी द डिफरेंस योरसेल्फ। वाओ। ओके। ठीक है, सो आई हैड अ बोन फ्रैक्चर माई सेल्फ सम इयर्स अगो, fell down from my Nandishala. We didn't have a boundary, so I had a bad fracture. So my recovery was relatively very fast because I had access to The gear B2 mill. तो and मैं इसका खुद एग्जांपल हूँ कि डॉक्टर भी कहा था कि जल्दी कैसे रिकवरी हो रही तुम्हारी, तो मैंने कहा कि ये डाइट से थोड़ा फर्क पड़ता है, हाँ बिल्कुल फर्क पड़ता है। Very तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं दिए मैंने, जस्ट ऑन दिस नेशन पनीर एंड मिल्क, and yeah, that is. ओके, अमेजिंग। सो हेता में और भी दूध, दही और छाछ, पनीर के अलावा भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आप कुछ थोड़ा उसके बारे में बताइए। व्हाट आर योर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स व्हिच यू वुड रिकमेंड आर पीपल हु आर वाचिंग दिस कि यहाँ से लिया जा सकता है? जी, so at Heta we manufacture 130 plus products, and all of our products have to be derived from the indigenous cow, Okay. except honey. And that's for a reason, because a lot of our products, customers ask for good honey, and we have to put it in some of the Ayurvedic preparations that we make. So as well, give it to them that ways. तो 130 प्लस जो प्रोडक्ट्स हैं, काउ बेस्ड प्रोडक्ट्स जिनको हम कहते हैं, ये हमें बनाने पड़ते हैं, और ये भी बहुत टिप ऑफ द आइसबर्ग है। There's so much more that we can do. We discover each day ourselves. Because as you're aware, 1100 से ज़्यादा बड़ा गौवंश है हमारे पास, 1100 plus cows and bulls, and there are limited milking cows at a certain time. Yeah. Many cows are old, some are weak, bulls. So how do we have this support the whole ecosystem? How do you support this? We have to produce these products, manufacture, sell them India-wide, worldwide. The proceeds from the sales of these products, that supports Heta. अच्छा। We don't seek any donations, neither do we get them that way. तो इनमें से जो हमारे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो घी ऊपर आता है, फिर च्यवनप्राश है हमारा। अगेन दिस इज मेड फ्रॉम च्यवनप्राश आप कई तरीके से बना सकते हैं। ये सबसे फेमस आयुर्वेदिक रेसिपी है जो बहुत फेमस हुई कोरोना में, और फॉर द राइट रीजंस। हम लोग इसे बदरी गाय के घी में बनाते हैं, अच्छा। नो ऑयल्स आर यूज्ड। देन वी डोंट पुट वाइट शुगर। बहुत सारे लोग वाइट शुगर डालते हैं जो कमर्शियल फॉर द रीजंस दे हैव। ये इसमें धागा मिश्री रहती है और इसमें वाइल्ड हनी रहता है। And then we put real amla, which we pluck ourselves, we boil ourselves, mash ourselves. ठीक है, so we are not using cooked or prepared आंवला पिष्टी से कहते हैं। ठीक है, अब बहुत से लोग इसमें आलू और कद्दू भी डाल देते हैं टू सेव कॉस्ट। अच्छा। देखिए 250 रुपए में च्यवनप्राश कैसे लोगे आप 56 तो जड़ी बूटी हैं, और जड़ी बूटी भी कोई सस्ती नहीं आती, उनकी अपनी कॉस्ट है, फायर है, रिसोर्सेज हैं, GST है 5%। ठीक है, फिर अब जहाँ सेल करोगे वो उसका अपना मार्जिन है। तो जो च्यवनप्राश है उसकी कॉस्टिंग नहीं निकलती, आप ऑयल्स यूज करते हो फिर। ठीक है, तो हेता में वी डोंट हैव दिस शॉर्टकट। वी मेक गुड थिंग्स, प्योर थिंग्स, बट देन दे कम विद लिटिल हायर प्राइस टैग। Sure. तो फिर हमारा ऐसे शता दोहता घृता क्रीम होती है, मल्टीपर्पज़ क्रीम। तो बहुत सी क्रीम्स लोग लगाते हैं, यूज़ करते हैं, बट दिस इज़ अ स्पेशल क्रीम। यूज़ इट इन द नाइट एज अ नाइट क्रीम। अच्छा। यू विल सी द डिफरेंस। इट्स वेरी आई मीन यू विल फील कि कुछ अलग लगा आज। शता दोहता घृता, शत धौता घृता ऐसे इसका शब्द है, बोल रहा है ये। 100 बार घी को पानी से फेंटना। देयर इज अ प्रोसेस हाउ टू मेक इट इन अ कॉपर वेसल। Ghee turns into something else when you do this. It's the same ghee. और कभी आपको कोई डायपर रैश होता है किसी बच्चे को, लगा के देखिए आप। There are people who come to us and take this SDG cream and they go to Europe and they say कि हमें रैशेस होते थे बहुत, हमारे बच्चों को डायपर रैशेस होते थे कि दिन भर पहनाना पड़ता है। एक्जिमा बहुत होता है एक्जिमा वहाँ है पर। जी, ड्राई स्किन, Dry उसमें skin. तो ये वर्क्स It really well. वंडर्स। So SDG is a good selling product. Then we have these fresh products, लड्डूस, क्योंकि लोगों को अच्छे लड्डू खाने की आदत तो छूट गई पता नहीं कब से, क्योंकि यू गेट दीज प्रिजर्वेटिव वाले लड्डूस, हाँ। चीनी वाले लड्डूस एवरीवेयर, एंड बनाने का समय लोगों के पास नहीं बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। सो एट हेता यू गेट दीज रियल गुड लड्डूस, मिलेट लड्डूस एंड द आटा लड्डूस। अच्छा। हाँ, so they're very good, they sell well. पनीर goes well.
अच्छा। वो बहुत सा आपका जो पनीर है आजकल एडल्ट्रेटेड है फॉर रीजंस दैट यू आर अवेयर। जब दूध ही एडल्ट्रेटेड है तो पनीर एडल्ट्रेटेड होगा। तो हेता में फ्रेश पनीर ऑन ऑर्डर बनता है, तो आपने ऑर्डर किया, आपका बन गया। अच्छा। देन वी आर इनटू कॉस्मेटिक्स नाउ व्हिच इज लाइक ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स। इसमें Okay. कुछ भी केमिकल नहीं होता है, और जो भी है वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक होता है। Okay. और बहुत सारा कुछ गायों से आता है। Okay. तो हमारा शैम्पू है, फेस वॉश है, बॉडी वॉश है, यूज़ करके देखिए, आप हैरान हो जाएंगे कि अच्छा। जो हम कर रहे थे वो कैसा है, ये वाला कैसे है, क्या Wow. फ़र्क है इसमें। Okay. ठीक है। सो फॉर डेली वॉशेज ऑफ हेयर और बाकी बॉडी के लिए इज आर रियली डूइंग वेल नाउ धीरे धीरे। और ऐसे ही आयुर्वेद में और भी कई सारी औषधियाँ और चीज़ें, अर्क हम बनाते हैं। Okay. वी स्टार्टेड सेलिंग इन अमेरिका couple of years ago at and you'll be surprised the product that sold the most was tulsi giloy gomutra ark. अच्छा। Yeah, so the people are aware of it. Okay. And there were a lot of fawners who wrote good comments ki this really helped me in this, this really Okay. helped me in this. जबकि cow urine is like looked down upon Yes. यार कि अरे क्या है, हाँ। तो क्या अपरोड़ीवादी हैं, क्या हाँ, कर रहे हैं। बिल्कुल। But as I said कि वहाँ ज्यादा बिक रहा है। हाँ जी, तो आयुर्वेद में गौमूत्र इज अ मेडिसिन। Yeah. मेडिसिन की तरह बनाएंगे, लेंगे, कंज्यूम करेंगे अगेन बाय आयुर्वेदिक डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, तो वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। जी। राइट फ्रॉम सर्दी खांसी जुकाम से लेके कैंसर तक इसके बेनिफिट्स हैं। Okay. बहुत पेटेंट्स भी हैं इस पे लिए। Amazing, amazing. And the other very special thing that noticed in your organization is that you have all women or women working in the Yeah, कितने? close to 95% I would say. Wow. Okay. So is there a particular reason behind this? So when we started, we are still looking for honest, hardworking people. It so happens that Mother Nature has blessed women to be little more sympathetic to the cause of cows, little more honest than their counterparts. Yes. And so that gels well with our philosophy. Amazing. So when boys turn up, and we do hire from the IMs, अच्छा. from good universities. So Wow. I have a very hard time interviewing people, kind of getting to know. So all that they're looking for is quick money, हाँ. and a platform to kind of go wherever they want to. And it's understandable the way things are, with Gen Z. But women have been more stable in these job roles, and we have fewer attritions. In fact, as I sit and talk with you, there is this Uttarakhand team in Heta. So if you call Heta support, you'll connect to Heta's team in Champavat. That's a very remote place in Uttarakhand. अच्छा. It's called Durgam Kshetra, Sugam Durgam. So Durgam Kshetra. And there the staff runs automatically. In fact, some of our IM folks, when they visited that place, they wrote a memoir after finishing their internship. They said, सर हमने MBA किया, बहुत कुछ सीखा, पर सब उल्टा हो गया। हम सोचते थे कंपटीशन होगा, जेलेसी होगी, आपस में लड़ाई होती होंगी, लेकिन ये कैसे एक संस्था है जिसमें सब लोग बड़े प्यार से काम कर रहे हैं और कोई एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर रहा है। और ठीक है। जबकि उल्टा कहा जाता है उल्टा कि है, कि women are always जी, gossiping and they're exactly, always fighting and this and that. So this memory stayed with them even when they got placed, and they say, sir, we still think about Heta. Wow. So that's a big thing coming from people who are working in corporates, big corporates across the globe. And you're absorbing a lot of school girls also जो part time कर लेती हैं, part time 2 घंटे भी निकाल सकती हैं, तो they can come and work for you. So, and they would do basically when they find a place safe for them. Yeah. So Heta is a women safe place. Mostly all the managers are women, and they run the show very well. Wow. As I said, we've had very few cases where we had to, course correct or ask an employee to leave because of ethics. So I think cows and women Go together. God has made them like this. Okay? Yeah. So that's how it is. So we're not partial, not hiring the boys, but we just would want people, to have that inclination towards working with cows, with agriculture, and that kind of stuff. Yeah. So they're coming, more than welcome. Yeah. Amazing, amazing, amazing. But thank you so much. This was one of the most enlightening podcasts. I mean, मैं सुनती भी बहुत रहती हूँ और हमने किए भी कुछ हैं, लेकिन I think this is one of the most wonderful chats that I've had in a very long time. For sure. So thank you so much for coming and thank you for enlightening us. And I hope that this podcast reaches a lot of people who become comfortable with the concept of milk, and also it reaches to people who can actually start their own startup and make this as a profitable venture, and so that everybody in India can get good quality milk.
Yeah. So God bless you for Thank you. this great initiative and having me here. I am very positive that by your podcast, a lot of people would be able to now make an informed choice Yes. and would also know why milk is important. Yes. Thank you so much. Thank you. Really, really appreciate Thank you it. so much. Thank you.